عزادارو دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندہ میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے کہا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے اب کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی ساتھ کٹا ہے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کی زندہ کے اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا تم نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے مجھ کو اب وہی بیٹی ہے زندہ ہے جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا اتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو
کہ مر جاؤں گی. یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے؟ کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا؟ بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے. میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد میں. ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا. زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے؟ مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے؟ پیاس لگتی ہے تو پی لیتی آنسو اپنے. شبر کے درد سکینہ کی غذا ہے بابا. کھا گئے شام کے زندان کے اندھیرے بابا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وسر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلوم الجافرية وغيث القاسمية والرضا الرزقية والزهد التقوية والطهارة النقبية وهيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوب. ولعنة الله على أعدائهم وقتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ دعائے صحت کے لیے دعا کر لیتے ہیں. 5 مرتبہ مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں. صاحب حسین بادامی صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور گزارش کی گئی ہے ان کی صحت کے لیے 5 مرتبہ صلوات کے بعد ہم مجید کر لیتے ہیں. محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر
खुदावंद आलम से दुआ है कि अपने मासूम अलैहिस्सलाम इस कुरान मजीद की आया करीमा के सदक़े में, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में, शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो बीमार हाजिर नज़र है, मद्द नज़र है, खुदावंद आलम साहिब हुसैन बदानी को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला वाजिब इनायत फरमाएं। खुदावंद आलम मोहम्मद ताजरीन इनको ज़्यादा से ज़्यादा शिफाए कामिला वाजिब इनायत फरमाएं। बिलखुसूस जहाँ जहाँ भी शान हदर करार मौजूद है, हक बजानी पढ़ने वाले लोग मौजूद है और वो बीमार है, कोई भी बंदा हो जो इमाम हुसैन का जिसके दिल में विलायत अली मौजूद हो, जहाँ जहाँ पर भी बंदे मौजूद है, खुदावंद आलम जो बंदे भी जिस तरह से भी मरीज़ है, जिस कंडीशन में भी है, खुदावंद आलम ने हक़ मोहम्मद अलैहि तालीम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुदावंद आलम चाहत मासूम अलैहिस्सलाम की सबके में तमाम बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बंदों के कारोबार में और तमाम बंदों की सेहत और सलामती के लिए, और जो बंदे इस दुनिया से गुजर गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, और तमाम बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ उस रब्बुर रहीम के लिए है जिसके क़ब्ज़े कुदरत में हर एक शय की जान मौजूद है। वो खालिक हकीकी जिसने हकीर को भी अमीर बना दिया, जिसने सूखी लकड़ी के अंदर भी जान डाली, वो कि जिसने ज़ुलेखा को बुढ़ापे में भेजने के बाद फिर से जवानी अता फरमाई, वो इतना बड़ा अला कुल्ली शैइन क़दीर कि जिसने जनाब यूसुफ को जनाब याकूब से एक तवील मुद्दत के बाद मुलाकात कराई और एक कमीज़ के ज़रिए, सिर्फ कमीज़ के ज़रिए याकूब को शिफा अता फरमाई। यूसुफ की सिर्फ एक कमीज थी जिसके जरिए जनाब याकूब ने शिफा हासिल की थी। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हम बंदों की हिदायत के लिए तमाम अंबिया और तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को भेजा। खुदावंद आलम के बाद दुरूद पाक है मोहम्मद वाले तारीफ़ पर, और उनमें भी सबसे आला चाहत मासूम अलैहिस्सलाम की हस्तियाँ जो हमारे लिए आइडियल है, उसवाए हसाना है, जो हमारे लिए अच्छा नमूना अमल है, जो हमें ज़िंदगी की तरफ, अच्छे रास्ते की तरफ गामज़न रखने के लिए हमें हमेशा हिदायत कर रही है, हमारे लिए मशअल राह है, हमारे लिए हिदायत का चिराग है, हमारे लिए हिदायत के मनारे हैं, हमारे लिए वो है कि जो हमें हमेशा ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी और दुनिया में आने से पहले भी हमें हिदायत करके रही हैं। चाहे वो आलम अरवा हो, चाहे वो दुनिया की ज़ात हो, चाहे वो बरज़ख का आलम हो, हर जगह पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका अहले बैत की मवद्दत रखने वाले को हमेशा हिदायत फराहम करती है, हमेशा उसकी मदद करती है। मिसाल आपके सामने है, जिनके दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत थी, मौला अलैहिस्सलाम ने उनकी छुप छुप कर मदद की। रसूल इस्लाम ने फरमाया, या अली, आपने हर एक नबी की छुप छुप करके मदद की है, यानी कि दुनिया में आने से पहले भी मदद की। दौरे हाजिर के लिहाज से जितने भी बंदे मौजूद है, इन तमाम बंदों की भी मदद मेरा मौला कर रहा है। वो अलग मसला है किस तरह से नहीं। हर हालत में आपकी मदद हो रही है। तो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तब भी मदद हो रही है। दुनिया से चले गए, ये बताए हर एक बंदे का अकीदा है कि नहीं कि मरने के बाद हमारी कब्र के अंदर मेरा इमाम आएगा? अकीदा है कि नहीं? इंसान मर गया, मरने के बाद भी मदद की जा रही है। तीनों हालत में, चाहे वो माजी हो या वो हाल हो या वो मुस्तकबिल हो, कोई सा भी जमाना हो, इमाम ने किसी भी जमाने में अपने चाहने वाले को तन्हा नहीं छोड़ा। लेकिन मेन चीज ये है, अकीदा तो हो, इंसान का अकीदा तो हो। अगर अकीदा है तो यकीनन इमाम की अकीदे के ऊपर इमाम वो है कि जो उसकी मदद करते रहेंगे हर एक जगह पर। लेकिन अगर एक इंसान का अकीदा ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा होगा कि एक बंदा कई सालों से रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठा हुआ और दुआ मांग रहा है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। इंशाल्लाह बयान करूंगा, आपने सुना हुआ भी है वाक़या, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा, इस वक्त मौजू के अंदर मौजूद नहीं है।
تو لہٰذا عقیدے کی ضرورت ہے. انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور نیت بنتی ہے عقیدے کے ساتھ. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو نیت بنے گی، اور اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو نیت کیا صحیح کر لے گا انسان. سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اپنے عقیدے کو اتنا زیادہ پاورفل کیا جائے، اتنا زیادہ پاورفل کیا جائے کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے کوئی بڑا چمتکار دکھا دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں. نہیں، ہم ایسی چیزوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. پہلے کی قوم جو گمراہ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اگر بڑی بڑی چیزیں دیکھی تو فوراً ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. مثلا سورج ہے، نکلتا ہے، لوگوں نے دیکھا، ارے نکلتا ہے سورج، اتنا بڑا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا لطف ختم ہو جائے، زندگی کا لطف ختم ہو جائے، زندگی میں مزہ لینا ہی حرام ہو جائے گا، کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ تو لہٰذا یہی خدا ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ سورج کی پرستش کرنی شروع کر دی. چاند کو دیکھا لوگوں نے، ٹھنڈک دیتا ہے، کچھ بندے ایسے نکلے کہ جو چاند کی پرستش کرنی شروع کر دی. کچھ بندوں نے دیکھا کہ ستارہ ہے، اپنی جگہ سے بار بار ڈگمگاتا ہے، نکلتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ایک ستارے کی وجہ سے اتنے سارے ستارے ہو گئے. سوچا کہ یہ ستارہ تھا، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، تو لہٰذا یہی خالق ہے. بہت سے بندے وہ ہوئے کہ جو ستاروں کی پرستش کرنے لگے، نجوم کی پرستش کرنے لگے، اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ بندوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد کہا ارے اتنے بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور پہاڑ جس کو کوئی شاید گرا نہیں سکتی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو لہٰذا حقیقت میں یہی خدا ہے. تو بہت سے بندے ایسے ہوئے جو پہاڑوں کی پوجا کرنے لگے. کچھ بندوں نے دیکھا بہت سے ایسے جانور نکلے ہیں کہ جو ان کو فیضیاب کر رہے ہیں، تو کچھ بندے ایسے نکلے کہ جو جانوروں کی پرستش کرنے لگے. کچھ بندوں نے دیکھا کہ خدا تو نظر نہیں آتا تو لہٰذا ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بنا دیتے ہیں. تو کچھ بندوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بنانا شروع کر دیا اور انہی کی پرستش کرنے لگے. اب کچھ زمانہ بدلتا گیا. ابھی تک تو کچھ بندوں نے خداؤں کی تصویر بنائی تھی کہ ہم خدا کی تصویر بنا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی خدا کی انہوں نے تصویر بنائی، زمانہ بدلتا گیا تو کچھ بندے ایسے نکلے کہ جو انہی کی پرستش کرنے لگے کہ یہی خدا ہے. تو مورتیوں کی پرستش. تو دیکھا ہمیں کوئی بڑی سے بڑی چیز دیکھ کر کے، چمتکار دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے عقیدے کو اتنا پاورفل کرنا ہے کہ اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کچھ بندے اتنے بڑے نکلے، جیسے مثلا آپ کے سامنے موجود ہے نمرود کی ذات، آپ کے سامنے موجود ہے شداد کی ذات، آپ کے سامنے موجود ہے بڑے بڑے فرعون کی ذات، آپ کے سامنے موجود ہے بڑے بڑے ظالم و جائر کی ذات کہ جنہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا. میں اپنے ہی موضوع پر ریلیٹیو ہوں اور یہیں سے میں نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ. بھرپور توجہ. آپ نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے ظالم آئے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دنیا والوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اس وجہ سے سرکار پاورفل ہے. تو ہمیں اپنے عقیدے کو اتنا زیادہ مضبوط کرنا ہے کہ اگر سب سے بڑا پاورفل انسان بھی آ جائے تو ہمارا عقیدہ اس کے سامنے بھی کمزور نہ پڑے. ہم اگر بالکل انتہا سے بڑی انتہا ہو جائے ہمارے اوپر اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے ہوئے بھی چلے جائے تو یاد رکھنا کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے عقیدے کو کمزور نہ کر دینا. سب سے پہلی بات ہے شیعت کو قبول کرنے کے لیے، ولایت علی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہے کہ انسان کا کم سے کم عقیدہ مضبوط ہو. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو پھر حقیقت میں حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں شیعان اہل بیت ہوں، شیعان علی ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیعان علی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے راہ سے بھٹکتا نہیں ہے. راہ سے مراد یہ نہیں چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ابھی تو مولا علیہ السلام کو چاہ رہا ہے اور کچھ دن کے بعد پھر سے ہٹ جائے اس راستے سے، اپنے دل سے ولایت کو نکال دے. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر عقیدہ کمزور ہو تو ہوتا ہے ایسا. لیکن اپنے عقیدے کو ایسا پاورفل بنائے کہ اگر بڑے سے بڑا چمتکار کرنے والا بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان کے سامنے کبھی سجدہ ریگ نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ شداد نے کہا تھا تم مجھے سجدہ کرو تو میں تمہیں غذا دوں گا. نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا اے ابراہیم تم آؤ میرے پاس، آنے کے بعد اگر تمہیں اناج چاہیے ہو تو میں تمہیں اناج دوں گا جیسے میں تمام کے تمام دنیا والے کو دے رہا ہوں. جس وقت نمرود کے زمانے میں عہد پڑا تو جناب ابراہیم بھی گئے اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس. تاریخ بتاتی ہے جناب ابراہیم بھی گئے نمرود کے پاس تو نمرود نے ایک ہی جملہ کہا کہ ابراہیم اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق دوں
भरपूर तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्क दूं, तो तुम भी जैसे दूसरे लोग मुझे खुदा मान रहे हैं, तुम भी मुझे खुदा मानो। तो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा, तो मैं तुम्हें राइस दूंगा, तो मैं तुम्हें चावल दूंगा, दूसरी चीजें दूंगा, तुम मुझे खुदा मानो। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा ऐसा नहीं हो सकता कि जो मांगने पर देता हो। अल्लाह अकबर। मेरा खुदा तो वो है जो मांगने पर भी देता है, बिना मांगे भी देता है। मेरा खुदा ऐसा नहीं कि अगर तुम मानोगे तो ही वो तुमको देगा, नहीं। मेरा बहुत सी मिसालें दी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक बंदा दे रहा है, देने के बाद कह रहा मुझे ऐसा मानो, नहीं, अकीदे की बुनियाद पर मानना है हमें। इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत के ऊपर डिपेंड करता है। आप आ जाइएगा शद्दाद की जात। शद्दाद ने जन्नत देने का वादा किया दुनिया में, कहा मुझे खुदा मानो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, दुनिया में ही दूंगा। अल्लाह को देगा दुनिया के बाद, मैं तुम्हें दुनिया में ही जन्नत दे रहा हूं। इससे बड़ा बेहतरीन मौका और क्या मिल सकता था इंसान को? तो जिनका अकीदा कमजोर था और वो ये सोच रहे थे अरे आखिरत किसने देखी, कम से कम दुनिया में तो जन्नत मिल रही है, भाई दुनिया की ही जन्नत ले लो, आखिरत का तो कुछ पता नहीं, तो लिहाजा दुनिया से ही हाथ ना धो बल्कि दुनिया की जन्नत को ले लो। तो जिनका अकीदा कमजोर था उन्होंने दुनिया की जन्नत को हासिल कर लिया, उन्होंने शद्दाद के सामने झुकना पसंद कर लिया, और ऐसा हुआ कि दुनिया की तो दुनिया की, उन्हें किसी भी जगह की जन्नत ना मिली शद्दाद को खुदा मानने की वजह से। मेरा मौला फरमाता है, जुमला सुनिएगा भरपूर, जो मैंने ये तमाम जुमले कहे हैं इस जुमले के ज़ैल में कहे हैं। मेरा इमाम फरमाते हैं, खबरदार कभी भी ऐसी वैसी मामूली चीजें देखने के बाद हाथ न जोड़ देना। अल्लाह अकबर। मेरा नबी फरमाता है, खुद आइमा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका और खुद अंबियाओं ने ये जुमला कहे हैं, खबरदार कभी भी ऐसी मामूली चीजें देखने के बाद हाथ ना जोड़ देना, क्योंकि इसी सरजमीन के ऊपर एक घराना ऐसा भी आएगा कि अगर इशारा कर देगा तो सूरज पलट करके आ जाएगा, अगर चाहेंगे तो सितारे उनकी ड्योढ़ी पर आने के बाद सजदा रेख हो जाएंगे, अगर चाहेंगे तो पहाड़ों का रुख बदल देंगे, पहाड़ों को अपनी जगहों से हटा देंगे, अगर चाहेंगे तो हवाओं का रुख बदल देंगे। उनका दर वो दर होगा, अंबिया फरमाते हैं उनका दर वो दर होगा कि जहां पर फरिश्ते आकर सजदा करेंगे, कहीं जिब्रील आएगा, कहीं मीकाईल आएगा, कहीं इस्माईल आएंगे, कहीं इब्राहिम आएंगे, तमाम नबियों की ज़ात मुबारका इसी घराने से मुत्तसिल होगी। तो खबरदार अगर तुम ऐसी चीजों को देखने के बाद खुदा कहोगे तो फिर उस ज़ात को क्या कहोगे जो इन तमाम की तमाम चीजों के ऊपर कवी हो? तो उन ज़ात मुबारकों को देखकर क्या कहोगे? फिर हकीकी सी बात है, फिर तो वाज़ेह सी बात है, फिर इंसान ये कहेगा अमा सरकार जो सूरज हमें रोशनी दे रहा है वो खुदा नहीं है, सूरज तो बल्कि खुदा तो वो है जो सूरज को पलट करके दिखा दे। फिर इंसान ये कहेगा अमा सरकार जो चांद हमें रोशनी दे रहा है, ठंडक दे रहा है, वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तो वो है जो चांद के दो टुकड़े कर करके दिखला दे। खुदा ये हवा नहीं है, हवा खुदा तो वो है जो हवाओं का रुख मोड़ करके बदला दे। ये पहाड़ खुदा नहीं है, खुदा तो वो है जो पहाड़ों को एक ही लम्हे में रेजा रेजा कर दे। ये कंकरिया ये खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तो वो है जो कंकरिया को अगर हाथ में उठा ले तो कलमा पढ़वा दे। लेकिन मेरा मौला अलैहिस्सलाम ये तमाम की तमाम कुदरत रखने के बावजूद सजदे में जाकर के बतलाएगा कि देखो कुदरत तो हम रखते हैं लेकिन खुदाई का दावा नहीं करते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हम पूरी कायनात के ऊपर कुदरत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। बात चल रही थी इख्तियार की और इस्तेमाल की। गुज़िश्ता मजलिस में जो जिक्र किया था वो इख्तियार और इस्तेमाल पे ही मैंने अपने मौजू को तमाम किया था और यहीं तक मेरी बात पहुंची थी, यहीं से मैंने तमाम कर दी थी अपनी रहमत को। तो मेरे अजीजों, ये ज़ात ऐसी है जिसको खुदावंद आलम ने पूरी कायनात का इख्तियार दिया है। अहले बैत इकराम, तुम्हारे सामने हमने पूरी कायनात का इख्तियार तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो इस पूरी की पूरी कायनात का। यही वजह है मेरा मौला खुद तो भूखा सो गया लेकिन पूरी कायनात में किसी को भूखा ना सोने दिया। कोई ला करके तो दिखलाए ऐसा हाकिम जो अपनी जिंदगी में किसी एक बंदे को भी भूखा सोने दे। एक ज़ात मिली है मौला अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक, हमारे आइमा अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक। जिस वक्त मसाइल नहीं आज पढ़ रहा हूँ, जुमला पहुंचा रहा हूँ आपकी खिदमत में, जिस वक्त मेरे मौला अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया जा रहा था तो उस वक्त देखा मौला अलैहिस्सलाम के कांधों के ऊपर बड़े बड़े निशान बने हुए हैं, बड़े बड़े निशान बने हुए हैं।
मालूम किया गया मौला हसन से, मौला हुसैन से, मौला ये बताए आपके बाबा के कांधों के ऊपर ये बड़े बड़े निशान कैसे हैं? तो आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मेरा बाबा वो है जो दिन में मजदूरी किया करता था और रात में गरीबों को हक को गरीब तक पहुंचाया करता था। कभी किसी यतीम को भूखा नहीं सोने दिया। रात में ऐसे, यानी ये नहीं कि अली ने अपने आप को पूरा सजाया, सजाने के बाद दूसरी जगह जा रहा है कि देखो मैं अली हूँ, सबको तकसीम कर रहा हूँ। आजकल तो दौर ही ये है, बहुत से बंदे ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पे पहले वायरल कर देते हैं कि देखो मैं मदद कर रहा हूँ। इसे मदद नहीं कहते हैं। शियाने हैदर कर्रार का सलीका ही ये हुआ करता है मदद करने का, जिस तरह से मेरे मौला ने मदद की है। अगर रात के अंधेरे में अगर चाहिए था तो दिन में भी मदद कर सकते थे। ये बताए क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी ने पाबंदी लगाई कि दिन में मदद ना करे? कहा नहीं, दिन में मदद करते तो हो सकता था 4 आदमी देख ले, अल्लाहु अकबर। लेकिन क्या जात होगी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की, दिन में मदद नहीं बल्कि रात की तारीकी में जाया करते थे, वो भी अपने चेहरे को छुपा करके जाया करते थे, कहीं लेने वाला तक ये ना पहचान ले कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुझको दिया है। ये है ज़ात मुबारक मेरे मौला की। भाई यही वजह है, लेने वाला ले तो लिया करता था लेकिन कोई पहचान नहीं पाया करता था कि देने वाला कौन था। अगर कभी खरीद ने मालूम भी किया है ना कि आप कौन है जो मेरे ऊपर इतना ज्यादा रहम करते हैं, कौन है आप जो इतना ज्यादा मेरी सब लो लगाते हैं, कौन है जो मेरी इतनी ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, कौन है जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो पता है ये नहीं कहा कि मैं वक्त का इमाम हूं तेरे, भरपूर तवज्जो, ये नहीं कहा मैं तेरे वक्त का इमाम हूं, बल्कि जुमला कहा एक गरीब के पहलू में बैठा हुआ है, एक अमीर के पहलू में बैठा हुआ है, एक लाचार के पहलू में बैठा हुआ है। बस यही समझ ले, जैसे वो लोग हैं वैसे ही मैं तेरे पास आ रहा हूं। तो देखा, इमाम ने कभी अपने मनसब को बढ़ाने के लिए दुनिया वालों के सामने तारीफ नहीं चाहिए। हम शिया ने हैदर कर्रार कभी यही शेवा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। अकीदा मजबूत होगा तो बिल्कुल हम इमाम के पैरोकार बन सकते हैं, और अगर अकीदा मजबूत नहीं है तो फिर इंसान कहीं से कहीं भी झुक सकता है। अभी इंसान खुदा के सामने झुका हुआ है, नाउजुबिल्लाह, अगर कोई बंदा इतना बड़ा मिल जाए कि जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो अभी पता चल रहा है बंदा उसके सामने झुक गया है। कहा नहीं, खुदा के सामने झुकना है। परवरदिगार आलम है हर एक शय के ऊपर कभी, वही अला कुल्ले शै कदीर की ज़ात मुबारक। मेरे मौला ने फरमाया हम हर एक शय पे कुदरत तो रखते हैं, इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन खुदाई का दावा नहीं करते। ये मेरे मौला अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक। दो जुमले कहते हैं मैंने, एक इख्तियार और एक इज्तिमाल। आसन एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। एक इख्तियार, दूसरे इस्तेमाल। और मैंने जिक्र किया था आदम से हुआ क्या था, का तर्क औला होने की वजह से आदम को जन्नत से निकाल दिया गया था। मिसाल दे देता हूं, इख्तियार और दूसरे इज्तिमाल। याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, अगर याद रहेगा तो मजा आएगा, और अगर जहन से निकल गया तो मजा भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा जहन के अंदर दोनों जुमले बिठाए रखिएगा, एक इख्तियार और दूसरे इज्तिमाल। क्या होता है इख्तियार और इज्तिमाल? मिसाल सुन लीजिएगा, मुहर्रम गुजरा है अभी मौलाना आए थे, मौलाना सुलेम मेहदवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी है, आइमा रहमतुल्लाह का जिक्र किया है। लेकिन मैं जनाब के ऊपर मिसाल नहीं दूंगा, मैं मिसाल दूंगा अपने ऊपर दी जाएगी तो और अच्छा रहेगा। अभी तो मैं आप लोगों के दरमियान खिदमत अंजाम दे रहा हूं, लेकिन मिसाल सुन लीजिएगा, मैं कहीं और से आया होता अशरा पढ़ने के लिए यहाँ पर। अब जनाब यही काजिम भाई कहने लगे कि मौलाना चलो रहोगे तो आप हमारे घर पे, तो लिहाजा अशरा पढ़ने के लिए आए हुए हो, या आप में से कोई भी मोहब्बत करने वाला बंदा मुझे अपने घर पे रख ले। भाई सुनिएगा, बहुत बड़ी मिसाल देना जा रहा हूँ, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, बहुत बड़ा जुमला है। और ये सुनिएगा कि मेरे मौला अलैहिस्सलाम का इख्तियार कैसा है, आइमा अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम का इख्तियार कहां तक है। अशरा पढ़ने के लिए आ गए सरकार, पहली मुहर्रम गुजर गई, दूसरी गुजर गई, तीसरी गुजर गई। अब जब वक्त गुजरता जा रहा था, पहले ही दिन काजिम भाई ने हमें, मसलन अगर सर्दी हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल मौसम रहता है या एसी चला रखी है जनाब ने, तो पहले ही दिन में हमें कंबल भी ला करके पकड़ा दिया, बिस्तर भी लगा दिया हमारे लिए, चादर भी दे दी गई, और दूसरी चीजें भी हमें मुहैया कर दी गई। कहा नीचे मौलाना साहब ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा ठीक है सरकार, ये हमारे लिए। वक्त गुजरता गया, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम, चौथी मुहर्रम, 10 मुहर्रम आ गई, तमाम हो गया अशरा तमाम होने के बाद स्वयं हो गया, हम अपने घर को चलने लगे।
जब अपने घर को चलने लगे तो हमने देखा वो बिस्तर वहीं के वहीं रखा हुआ है। अब हम जब चलने लगे तो हमने बिस्तर को तय करना शुरू कर दिया मिशन साहब, और तय करते करते उसको सारे को अपने बैग में समेट करके रखना शुरू कर दिया। तो बानियान मजलिस क्या कहेंगे, मौलाना ये क्या कर रहे हो, तुम तो हमारी चादर भी ले जा रहे हो, बिस्तर भी ले जा रहे हो, दूसरी चीजें भी लेकर के जा रहे हो, ये कर क्या रहे हो? कहा काजिम भाई तुमने ही तो दिया था हमें कि मौलाना ये तुम्हारे लिए, तो लिहाजा हम इस्तेमाल कर रहे तो हम लेकर के जा रहे हैं। कहा मौलाना क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, इसके ऊपर तुम्हारा इख्तियार नहीं है, इस्तेमाल था। अल्लाह अकबर, मैं कोई जुमला कहने जा रहा हूँ, मौलाना इन तमाम की तमाम चीजों के ऊपर तुम्हारा इस्तेमाल था, इख्तियार नहीं था। मैंने क्या मतलब, कहा मौलाना इस्तेमाल का मतलब ये है जब तक कि तुम यहाँ पर रहोगे तब तक तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अल्लाह अकबर, भरपूर तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे, आदम के साथ हुआ क्या है जन्नत में, इस्तेमाल और इख्तियार कहते किसे है, भरपूर तवज्जो। कहा मौलाना जब तक यहाँ पर रहोगे तो तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब जाओगे तो इन तमाम की तमाम चीजों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मौलाना इस्तेमाल का हक है, इख्तियार नहीं है। बस यही हुआ आदम के साथ। जब आदम को अल्लाह ने कहा जमीन पर निकल पड़ो तो आदम चले, अल्लाह की आवाज आई रुको आदम कहाँ जा रहे हो? परवरदिगार आदम तूने ही तो कहा है जन्नत से निकल जाओ, कहा निकलने के लिए तो कहा है, लेकिन ये तो उतारते जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आई, ये तो उतारते जाओ। कहा आदम याद रखना जब तक तुम जन्नत के अंदर रहे तब तक तुम्हारा इख्तियार था, लेकिन जब जन्नत से जा रहे हो तो इसको उतार करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा इस्तेमाल है, इख्तियार नहीं है। बस यही फर्क हुआ करता है इस्तेमाल में और इख्तियार में। जब कोई बंदा जन्नत में रहे, कोई नबी जन्नत में रहे तो लिबास जन्नत पहने, और जब वो जन्नत से निकाला जाए तो लिबास से जन्नत उतरवा लिया जाए। ये है इस्तेमाल। जिनको इख्तियार हुआ करता है जब वो जन्नत में रहते हैं तो भी लिबास जन्नत पहनते हैं, अगर दुनिया में आ जाए तो भी लिबास जन्नत मंगवा करके पहनते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद ये है इस्तेमाल और इख्तियार। हमारे अइम्मा मुस्तनाम को इस्तेमाल नहीं है, इख्तियार हासिल है, हर एक शय के ऊपर इख्तियार हासिल है। आप जानते हैं ना ये जन्नत कहाँ से आई, तमाम की तमाम शय आपके सत्य में खल्क हुई है। और जिस वक्त मेरे मौला ने 3 दिन के रोजे रखे थे तो उस वक्त खुदा आलम ने आयत करीमा नाज़िल की थी कि हमने इस जन्नत को 3 रोजों के बदले तुमको अता कर दी है, पूरी की पूरी जन्नत तुम्हारी, जो चाहे वो कर सकते हो। तो मेरे अजीज ये है, होता है इख्तियार। इख्तियार ये है जहां पर भी जाए इंसान वहीं पर इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे इमाम की ज़ात मुबारक का इख्तियार इतना है, सिर्फ रसूल इस्लाम को ही नहीं बल्कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी इख्तियार इतना है कि अगर कह दिया कि बेटा तुम्हारा लिबास दर्जी सी करके लेकर के आएगा तो रिजवान जन्नत को दर्जी बनकर के आना पड़ा। और एक जुमला कह रहा था, अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। बड़े ही शौक के साथ कह रहा है, बड़े ही फख्र के साथ कह रहा है, झूम झूम करके कह रहा है, रिजवान जन्नत, जन्नत के दर पर रहने वाला फरिश्ता। मैं कहूँगा रिजवान जन्नत, क्या तेरी इंसल्ट नहीं हो रही है, क्या तेरी तौहीन नहीं हो रही है? ये बता, क्या तू दर्जी है या जन्नत का मालिक है, जन्नत के दरवाजे का मालिक है, जन्नत के दरवाजे पर रहता है? कहा खबरदार मुझे दर्जी ना समझ लेना। कहा तो फिर है कौन? कहा रिजवान हूँ, रिजवान, दरवाजे जन्नत पर रहने वाला। तो फिर क्या मतलब, जब तू यहाँ पर आया तो जुमला कह रहा था अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। जवाब आएगा रिजवान का, नादान तू नहीं जानता, तूने ये तो देखा कि मैं दर्जी हूँ, पर ये ना देखा किसका दर्जी हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं तो उसका दर्जी हूँ जिसका नाका बनने के बावजूद रसूल का ओहदा ना घटा। फिर मेरा ओहदा कैसे घट सकता है? ये रिजवान के जुमले हैं। रसूल का ओहदा ना घटा जिसका नाका बनने से, मेरा ओहदा कैसे घट सकता है? कैसे? रसूल इस्लाम है नमाज में और हसनैन आए, यहाँ पर आपने बीबी का ओहदा देखा है, बच्चों का ओहदा देखिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का तो आप सुनते ही रहते हैं,
रसूल इस्लाम सजदे के आलम में हैं, दोनों बेटे आए, नवासे आए, आने के बाद रसूल इस्लाम की पुश्त के ऊपर सवार हो गए। जो अल्लाह कह रहा था मेरे हबीब इबादत करो, जिस हबीब के पांव में वरम आने की वजह से अल्लाह की आवाज आती हो, कलीलहु इबादत को घटा दो, इबादत को कम कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे हबीब के पांव के अंदर वरम आ गया है। मेरा रसूल अल्लाह की इतनी इबादत किया करता था, रात भर जाग कर कि रसूल इस्लाम के पांव के अंदर वरम आ जाया करता था। और जिस वक्त रसूल इस्लाम के पांव के अंदर वरम आया तो शर्माए हुए लहजे में आयत नाज़िल हुई और अल्लाह कहने लगा, ऐ मेरे हबीब इबादत को घटा दो, कलीलहु कम कर दो, घटा दो इबादत को। क्यों? क्योंकि आपके पांव के अंदर वरम आ गया है। हमें पसंद नहीं है कि आपके पांव के अंदर वरम भी आ जाए। जिस अल्लाह को पांव के अंदर वरम आना पसंद नहीं था, वही अल्लाह जब हसनैन पुष्ट पर हसनैन दाखिल हो गए तो अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे रसूल इबादत को बढ़ाते रहो, इबादत को बढ़ाते रहो जब तक हसनैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। ये एक होता सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इबादत को बढ़ाते रहो, इबादत को बढ़ाते रहो। अब जुमला कहूं, अगर वरम आ जाए तो कहता है घटा दो, और अगर हसनैन आ जाए तो कहता है बढ़ा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नमाज के अंदर हसनैन आ जाए, आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक आ जाए, तो इबादत के अंदर बिदअत नहीं हुआ करता, बल्कि इबादत में चार चांद लग जाया करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि सरकार आप तो अली का नाम लेते हैं अज़ान इकामत के अंदर, सरकार इबादत के अंदर अगर चार चांद लगाने हो तो अज़ान इकामत के अंदर हकीकतन अली वलीउल्लाह जरूरी है, तभी तो चार चांद लेंगे, तभी तो अहले बैत की मोहब्बत जाहिर होगी। रसूल सजदे के आलम में, आखिरी जुमला देने के बाद रहमत को तमाम कर रहा हूं, रसूल सजदे के आलम में, हसनैन पुश्ते रसूल के ऊपर, और आलम क्या है? जुमला सुनिएगा, बहुत बड़ा जुमला है। रसूल है ऐसे, हसनैन है ऐसे, भरपूर तवज्जो। रसूल है ऐसे, हसनैन है ऐसे। तीन मेराजे है, तीनों की तीनों हसनैन के नीचे है। अल्लाहु अकबर, मैं कोई जुमला कह गया हूं। तीन मेराजे है कायनात के अंदर और तीनों के तीनों हसनैन के नीचे है। सबसे पहली नमाज मोमिन की मेराज, वो नीचे। सजदा नमाज की मेराज, वो नीचे। रसूल साहिब मेराज, वो नीचे। या अल्लाह या अल्लाह, तीन मेराजे है, अकेले हसनैन है ऊपर। इस तरह से है रसूल, ऐसे है हसनैन, ऐसे है रसूल, ऐसे है हसनैन। यूं बैठे हैं सजदे का रुकन बैठा हो जैसे। अल्लाहु अकबर, भाई भरपूर तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। अकेले ऊपर बैठे हुए हैं रसूल, जो अहमद मुख्तार है, सजदे के आलम में है। आवाज़े कुदरत आएगी, यूं बैठे हैं सजदे का रुकन बैठा हो जैसे, अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे। या अल्लाह, मैं तो जुमला तमाम कर चुका हूं, इससे बड़ा जुमला सुनिएगा। यूं बैठे हैं सजदे का रुकन बैठा हो जैसे, अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे, अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे, फरजंदे मोहम्मद हमदन बैठा हो जैसे। तो कांधे पे कभी बाप, कभी पुष्ट पे बेटा, हमने तो रिसालत पे इमामत को ही देखा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये दोष पैगंबर है या शबीर का मस्कन। जज़ाकल्लाह। ये दोष पैगंबर है या शबीर का मस्कन, ज़हरा का ये फर्जंद कहाँ पहुँच गया है। जज़ाकल्लाह। जिस जगह जवानी में हैदर के कदम थे, शबीर तो बचपन में वहाँ पहुँच गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बुलंद तर सलावत पढ़े मोहम्मद। अब जुमला कह ही दिया है तो जुमला सुन लीजिएगा, रहमत को तो तमाम कर ही रहा हूँ। सरकार आवाज आएगी, मौलाना ये कौन सी बड़ा जुमला हो गया है। एक नाना अपने नवासों को अपनी पुश्त के ऊपर बिठाए हुए हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं तो अपने कांधों पे बिठाए हुए हैं, कभी अपने पुश्त पर बिठाए हुए हैं। मैंने दस्ते दब जोड़े रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, क्या आप अपने नवासों को अपने कांधे पर बिठा सकते हैं। आवाज़ रसूल आएगी, खबरदार कोई आम इंसान नहीं हूँ कि जो नवासे को अपने पुश्त के ऊपर बिठा लूं, अपने कांधों के ऊपर बिठा लूं, कोई आम इंसान नहीं हूं।
یا رسول اسلام ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھایا، اپنے پشت کے اوپر بٹھایا، بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا آپ کا رتبہ نہیں گھٹتا؟ آواز رسول آئے گی، نادان تم نہیں جانتے، تم نے ابھی تک امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک نانا نواسوں کو نہیں اٹھا رہا تھا بلکہ رسالت تھی، امامت کے ناز اٹھا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جملہ کہہ کر کے رحمت کو تمام کرو، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ تین ذات کا بیان کیا ہے، تینوں کے لیے جملہ سنیے گا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ اللہ اکبر۔ کس میں جرت ہے رکھے دوش نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا؟ ہے کس میں جرت ہے رکھے دوش نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا؟ تو رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قدم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے یہ کہ جو پوری کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے جس سے نبیوں تک نے فوائد اٹھائے ہیں، نبیوں تک نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر ایک جگہ پر نبیوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو پکارا ہے۔ مولا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں، خود رسول اسلام تک کی مدد کی ہے مولا علیہ السلام نے، کبھی تو خیبر میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں۔ اور رسول اسلام کا جملہ، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے نسبت وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یا علی انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ رسول اسلام کی ذات مبارکہ ہے جو مولا علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے جملے واضح کر رہی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ سنیے گا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم رسول کے جملوں کو رائے گا نہیں سمجھتے، ہم تو رسول کے جملوں کو وحی الہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، وحی الہی سمجھتے ہیں۔ اور جو بندہ رسول کو اتنا بڑا رتبہ دیتا ہو وہی تو مانے گا نا علی کو بھی، اور جس کی نظروں میں رسول کا رتبہ نہ ہو بھلا وہ علی کو کیسے مان لے گا؟ علی کو ماننے کے لیے رسول کے رتبے کا اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر بڑا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر انسان رسول کی ذات مبارک کو کہے یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے، تو وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ علی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ یہ ہو رسول کی ذات کیا ہے، اس بندے کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے۔ میرے مولا نے پوری زندگی بھر کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا، ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیتے رہے، میرے چاہنے والوں اپنا کردار ایسا بناؤ کہ تمہیں ضرورت نہ پڑے کہ تم اپنی زبان سے کہو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا والے تمہیں دیکھ کر کے یہ کہے دیکھو یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ہاں اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دے تو کم سے کم ہمارے ظلم کو یاد کر لینا، ہمارے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے گئے ہیں۔ آج 20واں ہے نا، آج آپ 20واں منانے کے لیے آئے ہیں۔ کس کا 20واں؟ شہدائے کربلا علیہ السلام کا۔ آج رونے آئے ہیں شہدائے کربلا کو، امام حسین، جناب علی اکبر، جناب عباس اور محمد قاسم، تمام کے تمام اصحاب حسین، انصار حسین، اہل بیت، تمام کے تمام وہ بندے جو شہید ہوئے، جن کو اسیر کیا گیا، ان تمام کے لیے آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ۔ ہاں کیوں نہ آنسو بہائے؟ کیونکہ تم اس کو آنسو بہانے کے لیے آئے ہو کہ جن کو رونے کے لیے ان کی بہنوں کو اجازت نہیں دی گئی، ان کے بچوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ جانتے ہو نا، جب بھی جناب زینب اپنے بھیا کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی تو ظالم آیا کرتا تھا، آنے کے بعد ستایا کرتا تھا۔ جانتے ہو نا، سکینہ جب بھی بین کر کے رویا کرتی تھی، بابا بابا ہمیں کہاں چھوڑ کر کے چلے گئے، اے بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، اے بابا واپس آ جائے، تو کٹے ہوئے نیزے سے آواز آتی تھی، اے بیٹی یہ رسول کی امت ہے جنہوں نے اس طرح سے ستایا ہے، اے بیٹی میرے سینے کے بعد اب تمہیں کبھی سینہ نہ ملے گا، یہ باپ کا سینہ نہ ملے گا، اب تمہیں ایسی ہی یتیمی میں زندگی گزارنی ہوگی۔ ہاں میرے عزیزو، ایک جگہ پر قافلہ روک لیا گیا۔ جب قافلہ روک لیا گیا
तो कुछ जगह पर ऐसे होता था, चलते चलते काफले वालों को प्यास लग जाया करती थी, तो काफले को रोक लिया गया। आज ईश्वर मनाने के लिए आए हैं ना, तो सुनिएगा, काफला रोक लिया गया तो जालिम आया, आने के बाद तमाम के तमाम सिपाहियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। एक नन्ही सी बच्ची थी जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। कुछ देर के लिए तमाम के तमाम असीरों की रस्सी को खोल दिया गया, उस बच्ची की भी रस्सी को खोल दिया गया। जब जालिम तमाम के तमाम सिपाहियों को पानी पिला रहा था तो सकीना थी जो पीछे पीछे दौड़ रही थी, ऐ जालिम थोड़ा पानी मुझे भी दे दे, बहुत ज्यादा प्यासी हूँ। 4 साल की बच्ची है सकीना, बार बार पानी मांग रही है, लेकिन जब सकीना थक गई और पानी ना मिला और वो जालिम आगे बढ़ता रहा, सिपाहियों को पानी पिलाता रहा, लेकिन सकीना को पानी ना दिया, तो सकीना रुक गई एक बार, और रुकने के बाद सोचा हो सकता है तमाम सिपाहियों को पानी पिलाने के बाद फिर मुझे पानी पिलाए। लेकिन सकीना ने देखा जब तमाम के तमाम सिपाहियों को पानी पिला दिया गया तो वो बंदा आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद सकीना फिर से आ गई, कहा मुझे थोड़ा पानी दे दे। उस बंदे ने उस पानी को दिया, अब तमाम के तमाम जानवरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया, ऊंटों को सैराब कर दिया, घोड़ों को सैराब कर दिया। जब सबको पानी पिला चुका तो सकीना ने सोचा मुझे पानी पिलाएगा। सकीना को आवाज दिए, सकीना पानी पीना चाहती हो? सकीना दौड़ के करीब आई, जैसे ही सकीना को करीब आते हुए देखा, अरे बचे हुए पानी को जमीन के ऊपर डाल दिया। सकीना तड़पती रह गई, अरे चचा अब्बास, आए सकीना प्यासी है, अरे घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा है, जानवरों को सैराब किया जा रहा है, लेकिन आपकी भतीजी हुसैन की बेटी जज़ाकल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम नबी अलैहिस्सलाम के। ये काफिला चला, यही हकीकी रिया है। अल्लाह आपकी नाज़ुओं को रुमाले शहज़ादी फातिमा में जगह इनायत फरमाए और आपको बरोज़ महशर निजात अता फरमाए, और आपका ये तमाम का तमाम जिंदगी का अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ गुजरे, हमारी आखिरत भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर हो। हाँ मेरे अजीजों, ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है शाम, और मैं मुख्तसर करके बयान करता हूँ। जिस वक्त शाम की एक गली से गुजरा है ये काफिला, तो वहां पर तारीख बताती है वहां पर एक अहले बैत की चाहने वाली रहा करती थी, अरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाली। जैसे ही उसकी कनीज ने कहा, ऐ बीबी देखो तो सही काफिला आया है, और उस काफिले के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया गया है, हाकिम ये ऐलान कर रहा है इस काफिले ने हाकिम के साथ में खुरूज किया था, हाकिम के साथ बगावत की थी, इसलिए उनको असीर किया जा रहा है। लेकिन बीबी मैंने देखा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काफिला कभी नहीं देखा, मुझे लगता है इस काफिले के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है। आप तो कहती हो ना, मैंने अपने इमाम से सुना है कि यतीमों से अगर दुआएं कराई जाए तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। ऐ बीबी, आपकी अगर कोई दुआ हो, कोई मन्नत हो तो जाओ उस काफिले के पास चली जाओ, लुटा हुआ काफिला आया है, उससे दुआ करा लो। बस एक मर्तबा वो बीबी पहुंची छत के ऊपर तो क्या देखा, तमाम के तमाम शाम वाले उस काफिले के ऊपर कोई सदके की खजूरें फेंक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई खटखरे मार रहा है, कोई सदका मार रहा है, और हद तो ये है जिसके पास कुछ ना था वो किसी ना किसी तरह से इस काफिले को सता रहा है। इस काफिले के अंदर उस बीबी ने देखा एक बच्ची है जो बहुत ज्यादा सताई हुई है। बस एक मर्तबा वो बीबी नीचे उतरी, कहा चलो मुझे इस काफिले के पास लेकर के चलो। बस जैसे बीबी नीचे गई, जाने के बाद उस काफिले के पास पहुंची, पहुंचने के बाद कहती है, ऐ बीबी तुम कौन हो? मैं जब जब आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया गया है। बस एक मर्तबा बीबी कुछ ना पहुंची, वो बीबी थोड़ी सी और आगे पहुंची, एक बच्ची को देखा, और बच्ची को देखने के बाद रोने लगी। क्यों? क्योंकि बच्ची के गाल सुर्ख हो चुके थे, तमाचे खाते खाते बच्ची के कानों से खून टपक रहा था, खून जमा हुआ था। उसने बच्ची की हालत देखी कि बच्ची के तमाम खून, तमाम के तमाम कान जख्मी है, कुर्ते में आग लगी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है। उस बच्ची के करीब पहुंची, करीब पहुंचने के बाद कहती है, ऐ बीबी क्या कुछ चाहती हो? बस एक मर्तबा उस बच्ची ने अपनी फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा, अरे बड़ी देर हो गई है, मैंने एक कतरा आप तक ना पिया। फूफी अम्मा, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, क्या मुझे
थोड़ा सा पानी मिल सकता है। उस बीबी ने ये सुन लिया कि ये बच्ची प्यासी है, आई उसके करीब पानी लेकर के आई, उस बच्ची को देना चाहती है, प्लीज ये बच्ची आप पानी पी लो। बस एक मर्तबा एक जुमला कहा पानी देने के बाद, है बच्ची तुम यतीम हो ना, मैंने अपनी इमाम से सुना, अपने मौला से सुना है, मेरा मौला कहता है अगर कोई यतीम हो उसके ऊपर कभी जुल्म न ढाना, और देखो उससे अगर कभी दुआ मंगवाओ तो उससे जरूर दुआ मंगवाना, क्योंकि यतीमों की दुआ कभी जल्दी से रद्द नहीं की जाती। कहा एक मर्तबा सकीना ने उस पानी को पीते पीते रुक गई, अपने होंठों तक ना पहुंचाया, और एक जुमला कहा, ऐ बीबी हम वो है कि जो पहले दुआ करते हैं बाद में पानी पीते हैं, पहले तो ये बता तेरी दुआ क्या है, तेरी हाजत क्या है। बस एक मर्तबा वो बीबी रोने लगी, रोने के बाद कहा, ऐ बीबी ऐ बच्ची पहली मेरी दुआ तो ये है कि अल्लाह से दुआ करना जैसे तू यतीम हुई है वैसे कभी कोई बच्ची यतीम ना हो, मेरे बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो। सकीना ने अपना चला हुआ कुर्ता फटे हुए कुर्ते को उठाया, उठाने के बाद दुआ की, परवरदिगारे आलम जैसे मैं यतीम हुई हूँ वैसे कभी इसके बच्चे यतीम ना हो। बस एक मर्तबा दूसरा सवाल का ये बताओ तेरी तमन्ना क्या हाजत है तेरी। बस एक मर्तबा उस बीबी ने कहा देखो मेरी दूसरी तमन्ना ये है, दुआ करो कि मुझे जल्दी मदीने जाना नसीब हो जाए। अब जैसे ही मदीने का नाम आया ना, ज़ैनब से रहा नहीं गया, ज़ैनब रोने लगी, ये बताओ अरे मदीने से कैसा रिश्ता है। वो बीबी कहने लगी मदीने में मेरा आका रहता है, मेरा रसूल रहा करता है, मेरे रसूल के नवासे रहते हैं। अब मेरा रसूल तो नहीं है लेकिन मेरे नवासे उन रसूल के नवासे रहा करते हैं। मेरा आका हुसैन रहता है, मेरा आका अब्बास रहा करता है, मेरा आका अली अकबर रहता है। बस एक मर्तबा ज़ैनब से रहा ना गया, क्या तो चाहती क्या हो, क्या दुआ करो कि मेरी एक मर्तबा अरे मेरे इमाम से मुलाकात हो जाए। ज़ैनब ने कहा अगर तुम हुसैन को जानती हो, अब्बास को जानती हो, अली अकबर को जानती हो तो फिर तो ज़ैनब को भी जानती होगी। अरे ज़ैनब का नाम आना था। उम्मे हबीबा रोने लगी, एक जुमला कहती है ऐ बीबी खबरदार, अरे ये शराबियों का हुजूम है, अरे यहाँ पर कभी भी उस पाक बीबी का नाम ना लेना। ज़ैनब तड़पने लगी, ऐ बीबी अगर अपनी आकाज़ादी ज़ैनब को यहाँ पर देखोगी तो क्या पहचान लोगी। उम्मे हबीबा तड़पने लगी, बीबी खबरदार, अरे वो तुझ जैसी नहीं है, उसका हुसैन जैसा भाई है, अब्बास जैसा भाई है। अरे मेरी बीबी का ऐसी जगह पर नाम ना ले। अरे अब ज़ैनब से रहा ना गया, बालों को उल्टा, ऐ उम्मे हबीबा पहचान, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। उम्मे हबीबा ने ज़ैनब को देखा, तड़पने लगी, मेरी बीबी ज़ैनब, ऐ शहजादी मेरा आका कहाँ है, आका अब्बास कहाँ है। कहा देखो वो जो नोके नेज़ा के ऊपर सर बुलंद है वो आका हुसैन का सर है, वो अब्बास का सर है, ये हुसैन की बेटी सकीना है। वाह वाह मुझे ये बताओ على القوم الظالمين سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رفعا بقضائهم وتسليما لأمره परवरदिगार आलम तो रहमान रहीम है, करीम है, नबी हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तुझे शुहदाए करबला का वास्ता, तमाम अंबिया का, तमाम औसिया का, तमाम वली खुदा का, परवरदिगार आलम तमाम अहले बैत का वास्ता है, बेहक मासूमीन अलैहिस्सलाम अहले बैत के घराने का वास्ता है। खुदावंद आलम हमारे तमाम तर गुनाहाने सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। जो बंदे इस दुनिया से गुजर गए हैं, जो बंदे परेशान हाल है, खुदावंद आलम उनकी तमाम तर परेशानी को दूर फरमा। बेहक मोहम्मद मालिक तालीम हम तमाम बंदों को, हमारे बच्चों को, हमारे अजीज़ों को, हमारे बुजुर्गों को, तमाम जवानों को
سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم بحق محمد علیہ الطاہرین دین اسلام کو سربلند فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما بحق محمد علیہ الطاہرین جو بندے بھی بے اولاد ہے جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کے صدقے میں بحق محمد علیہ الطاہرین ان کو اولاد صالحہ عطا فرما خداوند عالم چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جناب امام سید سجاد کے صدقے میں جو بندے بیمار ہے بحق معصومین علیہ السلام اور جو مریض موحد نظر ہے اور تمام بندے جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہے حق ولایت رکھنے والے موجود ہے پروردگار عالم جو بندے بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما خداوند عالم بحق محمد علیہ الطاہرین ہمارے آخری امام یوسف زہرا امام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تملک
تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب بھر ساری روتی رہی ہوں کبھی غازی کا لہجہ بدل کر میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں ان بیوہ بہو بیٹیوں سے ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو گلا ہائے شام ہائے شام شام ہائے شام تیرے عابد پہ تاریخ شی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی کبھی رہوں میں اپنی رضا کو کبھی رہوں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جنتے خیال ہائے شام جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی سب کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کلا ہائے شام ہائے شام ہائے دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا کاٹ دیتا وہ اس کی زباں کو کوئی باقی اگر مجھ کو کہتا دیکھ کوئی پھر میں کس طرح لیتا دیکھ کوئی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجھ میں میرا ہائے شام ہائے شام ہائے کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باقی جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی کھول دا پانی پھینکو چھتوں سے کھول دا پانی پھینکو چھتوں سے پتھروں کا کرو انتظار ہائے شام ہائے اس وقت جب کہ زینب
دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کاروان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں بابا جان میری داں مانگتی رہ گئی بام و در سج گئے جیت جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فلک میری چادر سے ہے میری
छुपाऊं कहाँ बाबा जा ये तेरा आखिरी था बयां तेरी चादर बचाएगा गाजी जवां मर गया बावफा छिन गई है रिदा कहती है बीबियां ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ रुक न पाया मेरे बावफा का वो सर नोके नेज़ा से आने लगा खाक पर बहन को दर बदर देख कर नंगे सर सह न पाया जवां ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ कल थी आज मैं भी हूँ दरबार में मिसले ज़हरा खड़ी हूँ मैं यार में उस तरफ है शमी इस तरफ रह गई बेपदर बेटियां ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ ऐसा खुद दिया मैंने दरबार में लिख रहा है जो यावर तेरे प्यार में लहजे है दिली हर अज़ा के लिए है सदाए अज़ा ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपा